guys, we will start with another chapter for class 10th, that is our environment, and this will be the last chapter for the biology unit. Okay, so guys, हम सबको पता है कि our environment का मतलब क्या है. Our environment means हमारी आसपास की सराउंडिंग्स, हमारी environment basically कि हमारी हवा कैसी है, हमारा पानी कैसा है, हमारी मिट्टी कैसी है, हमने आसपास कैसे क्लीनलीनेस रखी हुई है, और हमारी जो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं बेसिकली, इसमें हम कैसे अपने आप को environment को सुधार के रख रहे हैं. Then we have some biotic factors as well, जैसे plants, animals, insects, microorganisms, humans, हम लोग सब कैसे मिलजुल के इस environment को अच्छा बना रहे हैं. ठीक है, जो कि हम बना नहीं रहे हैं, बेसिकली ह्यूमंस हैव डिप्लीटेड एनवायरनमेंट. बट चलो लेट्स स्टडी कि आवर एनवायरनमेंट में एक्चुअली है क्या. We have heard the word environment often being used on television, in newspapers and by people around us. Our elders tell us that environment is not what it used to be earlier. Others say we should work in a healthy environment, and global summits involving the developing and developed countries are regularly held to connect with the environmental issues. So कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कनेक्ट है कि जो हमारी environment पहले थी वो आज नहीं है. उसका रीजन है कि हम लोगों ने इतनी एडवांसमेंट्स कर दी हैं जिसकी वजह से हमने जो नेचुरल चीजें थी उसको बहुत ऑल्टर कर दिया है, एंड कहीं ना कहीं हमारी एनवायरनमेंट उससे अडेप्ट नहीं कर पा रही है. तो दैट इज व्हाई काफी सारे समिट्स हो रहे हैं, काफी सारी मीटिंग्स होती हैं, लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं जिसमें वो कुछ ऐसा प्लान करें जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हो, क्योंकि एट लास्ट ये हमारे लिविंग है, ये हमारा हैबिटेट है, हमें इसे अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट components आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इस environment पे इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहला टॉपिक है इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. सो अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम है क्या? दैट इज आवर एनवायरनमेंट अलोंग विद द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. अब मैंने जो दो शब्दों का नाम लिया, दैट इज एबायोटिक एंड द अदर वन इज द बायोटिक. एबायोटिक का मतलब है नेचुरल फैक्टर्स बट नॉट लिविंग. ओके, एंड बायोटिक मीन्स बोथ नेचुरल as well as living. ठीक है जी. All organisms such as plants, animals, microorganisms, human beings as well as the physical surroundings, वो सब आपस में interact करते हैं with each other and they maintain a balance in nature. तो that means हम और हमारे around जितनी चीजें हैं environment में, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव के कारण हमने एक environment में balance maintain करके रखा हुआ है. ठीक है. All the interacting organisms in an area, जितने भी organisms हैं, चाहे non living है चाहे living है, that means biotic और abiotic, they are together forming an ecosystem. तो इसलिए ecosystem के बारे में हम कह सकते हैं that an ecosystem consists of biotic components जिसमें living organisms हैं and abiotic components जिसमें physical factors हैं जैसे कि temperature, rainfall, wind, soil, minerals, etc. Now for example, if you visit a garden, आपको different plants मिलेंगे जैसे grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower and some animals like frogs, insects, birds. ठीक है. All these living organisms interact with each other. ये सभी living organisms आपस में एक दूसरे से interact करते हैं. ठीक है, and their growth, reproduction और सभी activities they are affected by abiotic components of ecosystem. All these activities are actually affected by the abiotic components जो भी हमारे ecosystem में होते हैं. ठीक है. So a garden is actually an ecosystem which is natural, but some other systems like forest, ponds, lakes, they भी सब क्या है? Natural ecosystem, whereas gardens, crop fields are human made. हमने खुद बनाए हैं. We have self developed. इसी तरीके से एक्वेरियम, हमने फिशेस को एक आर्टिफिशियल सिस्टम खुद बना के दिया है. तो जो चीजें नेचुरल हैं, we call them as natural, लेकिन जिनको हम डिजाइन करते हैं जैसे हमारे घर का गार्डन, हमारी क्रॉप की फील्ड्स, एक्वेरियम, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम्स में आते हैं. करेक्ट. ठीक है, ये था आपको ब्रीफ एनवायरनमेंट का और इकोसिस्टम का. अगले लेक्चर में हम सेकंड पेज कवर करेंगे एंड आई होप आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए पेज वाइज पेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. दैट्स ऑल.